Good evening, everyone. Welcome to Nutrition Gyan Prabha platform. So, in today's class, we are going to discuss specifically regarding food pigments. Okay. So, this topic is definitely important for your UGC NET home science examination, as well as there are other examinations such as WB set, MB set, some PGT examination, uh, and definitely the subjects related who are studying masters in food and nutrition, applied nutrition. Okay, so in this class we are going to discuss the topic in a very detailed manner, and what exactly are important in terms of examination, that also we will be discussing. Coordinator, please let them in who are waiting to for joining to the class. Okay, so the first term, that is your food pigment. So what exactly is this food pigments? Food pigments means definitely that is another term, and food is another term. So both of them are together called as food pigments. So food are particularly can be anything like fruits and vegetables, and definitely we have seen in this picture also you can see that in like every fruits or vegetables have a individual coloration, right? For example, this apple is colored in yellow, and tomato is definitely reddish. So why so? And what exactly is these colors are uh, describing, right? So these are naturally colored mainly by four groups of pigment. So pigments are nothing which are providing the colors to the food items. Pigments are nothing but the colored. Right? So how exactly is this classified? That is important. So specifically or in general, there are two types of pigments. Okay. So before that, these are green chlorophylls and yellow and orange red carotenoids. And if we classify in a basic manner, like the pigments, the one is going to be classified as water insoluble pigment. Okay. And the other one is the soluble one. So definitely as the name is describing, जो water soluble होगा वो water में easily soluble हो जाएगा. Okay, and on the other hand, which are insoluble, they will not going to mix with the water. So this is basic. So water insoluble में chlorophyll आएगा. That means these are not soluble in water. Okay, chlorophyll and carotenoids. On the other hand, the soluble ones are anthocyanin, beta-alanine and anthocyanin. So ये जो terms है, basically the classification, this is important. Try to note down for the future reference. Next, chlorophyll. So chlorophyll are basically water insoluble already. Previous slide we have discussed. So chlorophyll are mostly insoluble in water, and unripe fruits मतलब जो कच्चा होता है raw fruits उसमें ज्यादातर क्लोरोफिल पाया जाता है. कलरेशन क्या क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, राइट? जो कैप्सिकम, लीफी वेजिटेबल्स इसमें होता है ज्यादा. एंड येलो होता है जो आप कैरेट में मिलेगा, देखा होगा आपने, जो कलर होता है वो डल येलो होता है. ओके, सो यस. तो नाउ कैरोटीनॉइड्स का जो क्लासिफिकेशन होगा वो डिटेल में इधर जो आप टेबल ट्री बनता हुआ देख रहे हो वो ही specifically each and every carotenoids have been included in this tree. So lycopene is basically रहता है टोमेटो में, राइट? टोमेटो, द कलर ऑफ टोमेटो इज रेड एंड उसमें लाइकोपेन रहता है. So this is basically a carotenoid. Okay, so ये जो उसका जो advantage है वो इतना ज्यादा for examination purpose important as such, like carotenoid and lycopene is by nature an antioxidant. तो उस हिसाब से आपको जानना जरूरी होगा कि इसका जो basically जो
यस द रोल, वो क्या होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इससे कोई सच कोई क्वेश्चन यूजीसी ने जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूंगी। ओके, सो फर्स्ट वन इज लाइकोपेन, देन बीटा कैरोटीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, what exactly this beta carotene and where from where you can get this. Okay, so ये beta carotene क्या है, ये भी एक कैरोटीन है। so first is lycopene, then is beta carotene, third is astaxanthin, then beta cryptoxanthin, next is phytine and phytofluene and then lutein और zeaxanthin। तो ये अपकमिंग स्लाइड में आप लोग देखोगे कि ये कहाँ से, मतलब सोर्स क्या है, बीटा कैरोटीन कहाँ पे कहाँ से कौन सा सब्जी और फल में मिलता है, तो वो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत अब देख लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, राइट। सो ये लोग कौन में क्रिप्टोजैंथिन मिलता है, ये ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। यही जो टेबल आप देख रहे हो ऐसा ही टेबल बना के कौन सा किसके साथ ऐसा करके मैचिंग आप लोगों को पूछा जा चुका है ऑलरेडी यूजीसी ने जेआरएफ एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन फ्यूचर टू। सो ये जो टेबल आप देख रहे हो, जो कंसेप्ट आज आपको राइट नाउ इन दिस क्लास यू आर गेटिंग, आफ्टर दैट यू हैव टू मेमोराइज इट। सो ट्राई टू मेमोराइज, लाइक फॉर एग्जांपल यूलोकॉन में क्या मिलता है, दैट इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज योर क्रिप्टोजैंथिन। ये डिफर नहीं करेगा, तो इसलिए ये स्पेसिफिकली आपको याद रखना होगा। लाइकोपेन टोमेटो में मिलता है, बीटा कैरोटीन भी मिलता है, रेड कैप्सिकम में क्या मिलता है, क्रिप्टोजैंथिन, कैप्सोरूबिन, बीटा कैरोटीन, वायलोजैंथिन, नियोजैंथिन। दीज आर इंपॉर्टेंट, राइट। लाइक ये आप मिस नहीं करना सॉरी। नेक्स्ट ग्रीन कैप्सिकम, इसमें ल्यूटेन, बीटा कैरोटीन, वायलोजैंथिन ये मिलेगा। तो दीज ऑल ऑफ दीज आर पिगमेंट एंड एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, इस ये जो पिगमेंट होता है इन लोग ये पिगमेंट का ऑल ऑफ दिस पिगमेंट्स हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड एंटीऑक्सीडेंट रोल, लाइक हाउ एग्जैक्टली एंटीऑक्सीडेंट हेल्प इन आवर बॉडी, राइट, टू डिटॉक्स, लाइक दिस इंडिविजुअल बायोएक्टिव कंपोनेंट आर वेरी मच एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ये जो पिगमेंट्स होता है वो बाय नेचर एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये जरूर से आप याद रखोगे। एंड कहाँ पे मिलता है वो दिया हुआ है, वो भी आप जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट, ये पिक्चर के थ्रू इजीली ये जो इंपॉर्टेंट वाला मतलब ये आ चुका है ऑलरेडी, लाइक ल्यूटेन, zeaxanthin एबंडेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको एग यॉक में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये पूछा ऑलरेडी जा चुका है, इसलिए हम लोगों ने फिर से आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट, बीटा क्रिप्टोजैंथिन, ये ऑरेंज कलर का है जो कॉर्ड में मिलेगा। यस, next, yes, who have been unable to join, they will get the recording version, but yes, provide them the new joining link. Okay, next, the beta cryptoxanthin is majorly present in avocado, basil, mango, orange, papaya, peaches. This is important. Not only like अगर आपको पूछा जाए कि एवोकाडो में है या नहीं है, तो शायद आप और एक ऑप्शन आपको मिला वो मतलब जो सबसे ज्यादा मेजरली पॉसिबली प्रेजेंट होता है वो सोर्सेस हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफिकली याद रखना जरूरी है। ओके, येलो एंड ऑरेंज कलर का जो मेज है उसमें बीटा क्रिप्टोजैंथिन रहता है, ये ऑप्शन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल, this topic is by nature easy to understand, but yes, these points and concept are important for your examination. Water soluble pigment, तो ये easily water में घुल जाता है, mix हो जाता है, that is why these are soluble. Flavonoids are classified, so flavonoids are by nature वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। ओके, तो इसमें क्या आएगा, एक है आपका एंथोसायानिन और एक है एंथोजैंथिन। दीज आर इंपॉर्टेंट। एंथोसायानिन आर हाईली वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। कलर याद रखना जरूरी है, इसलिए रेड कलरेशन में आपको नोट्स में दिया हुआ है, तो ये आप देखो कि बोला गया है सो रेड टू पर्पल। सो इफ एंथोसायानिन इज द aspect, then the coloration going to be red to purple. Okay, on the other hand अगर एंथोसायानिन बोला जाए तो कलरलेस टू व्हाइट। कलरलेस मतलब कॉलीफ्लावर ले लो आप, जो व्हाइट डिश होता है, ठीक है ना, तो वो आएगा आपका एंथोजैंथिन में, माइंड यू।
Anthocyanin is basically colorless to white. Anthocyanins are red to purple. Okay. So ये तो हम लोग जानते हैं वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल एंड लाइक लाइपोफिलिक में क्या आएगा, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड एंड लाइक अगर वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो डेफिनेटली फैट में है, इसीलिए उसको फैट सोल्यूबल भी बोला जाता है। इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। तो यस, अगर आपको यूजीसी चाहे तो ऐसे भी लाइक पूछा, लाइक पूछ सकते हैं लाइक हाउ एग्जैक्टली द फैट सोल्यूबल वन। तो अगर वाटर सोल्यूबल नहीं है तो फैट में सोल्यूबल है, तो वो है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एंथोसायनिन में कलरेशन जैसे बोला गया है रेड टू पर्पल, तो रेड कलर में जो जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आएगा वो आएगा एंथोसायनिन में। यहाँ से आपको कलर बेस्ड ऑन द कलर व्हाट एग्जैक्टली द सोर्स इज वो ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो वो ही आप जरूर से याद रखोगे। एंथोसायनिन हैज साइनिडिन विद अटैच्ड शुगर, दिस लाइक अदर फ्लेवोनॉइड्स आर contained in the vacuole of plant। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दिस वाला क्वेश्चन, बट यस चेरीज, रेड एप्पल बेरीज, बेरीज लाइक ब्लू एंड रेड, बेरी का कलर ब्लू भी होता है रेड भी होता है, तो दोनों ही आएगा एंथोसायनिन में, राइट। पोमग्रेनेट्स, करंट, ब्लैक करंट होता है जो आपको करंट का ब्लैक करंट का स्वाद वाला मतलब फ्लेवर वाला आइसक्रीम मिल जाता है, तो वो भी एक ब्लूइश होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रूट्स के नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, these all are having anthocyanin as a pigment। Next, the red color in the skin of the radish and sweet potatoes and the leaves of the cabbage is due to the anthocyanin। So yes, whatsoever are from red to purple, अगर आप याद रख लो उसके बेसिस पे आप चाहे तो खुद भी मतलब बहुत ही इजीली अगर ऑप्शन भी दिया जाए तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वाला में कौन सा बेसिकली विच वन इज हैविंग विच काइंड ऑफ विच टाइप ऑफ आपका पिगमेंट्स, राइट। नेक्स्ट एंथोजैंथिन, व्हाइट टू कलरलेस और कलरलेस टू व्हाइट, राइट। कलर होगा ही नहीं, तो कॉलीफ्लावर मैंने अभी आपको बोला भी था, तो यस द कलरलेस और द पेल येलो, लाइक बहुत ही ज्यादा पेल होगा वैसा वाला, ऐसा कलर कुछ मेंशन नहीं करता, तो वो आएगा आपका जैंथिन में, ठीक है। दीज आर कलरलेस। सो हेयर बेसिकली कॉलीफ्लावर, ऑनियन, स्पिनच, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज करने के लिए आप रिवाइज करना, ठीक है। अदर लिविंग वेजिटेबल्स, इन ग्रीन लिविंग वेजिटेबल्स कलर इज मास्क्ड बाय क्लोरोफिल। तो मास्क मतलब क्लोरोफिल ऊपर रहता है, उसके अंदर तो जो जैंथिन होता है वो थोड़ा बहुत मास्क रहता है उसका, इसलिए ग्रीनिश भी होता है। एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पत्ते के अंदर क्लोरोफिल है, लेकिन जो सब्जी है कॉलीफ्लावर इसके अंदर जैंथिन है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट बीटालिन, दिस इज वेरी लाइक एविडेंट, देख के ही समझ में आता है ये बीटरूट है। एंड बीटा लेनिन्स और बीटालिन्स, बीटालिन्स, तो ये जो होता है आपका ये कलर देखो आप, तो ये बेसिकली बीटरूट में मिलता है, तो बीटा लेन्स इज द पिगमेंट हियर। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपने पहले हम लोगों का जो कोर्स का क्लास है अगर किया होगा तो आप लोग ये कोर्स के क्लास में किया अगर होगा तो वो आप जानते हो, लेकिन इफ यू आर सीइंग दिस इंडिविजुअल क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन द बीटा कंपाउंड्स, ओके। सो ये होता क्या है, अगर आपने आलू लाइक घर पे खाया होगा, थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि ग्रीनिश ग्रीनिश कलर का एक पोर्शन आ जाता है, तो वो खाने में बहुत ही ज्यादा मतलब नॉट बेस्वाद, आई वुड से काइंड ऑफ लाइक तो बहुत अजीब सा होता है, अगर आप खाओगे भी तो भी आपका मतलब टंग में थोड़ा बहुत मतलब अजीब सा एक टेस्ट आएगा, ओके। सो दीज आर कंपाउंड विच आर बिटर इन टेस्ट एंड काइंड ऑफ टॉक्सिक ऑल्सो, राइट। सो दैट इज वाई दीज आर वेरी लाइक you have to know about these things, like for example ये जो पोटेटोज में होता है, अगर पोटेटोज एक्सपोज हो जाए ज्यादा से ज्यादा लाइट और लाइक लाइट में, तो क्या होता है स्प्राउटिंग हो जाता है, डैमेज होता है, कलर ग्रीन हो जाता है ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सर्टेन टॉक्सिन विच इज नोन एज स्टेरॉइडल लाइक सोलानिन एंड
कैकोमाइन. ओके, तो सोलानिन का जो नाम है वो याद रख लेना, एंड कैकोमाइन. तो दीज आर टॉक्सिन. सो ये ज्यादा से अगर लाइट पे ज्यादा रखोगे तो प्रोड्यूस होगा, मतलब इंक्रीज होगा, रहता ही है वो टॉक्सिन, लेकिन इंक्रीज मतलब बढ़ जाए, उसके लिए एक कॉलेशन है ज्यादा से ज्यादा लाइट में एक्सपोज होना. मतलब ये मिट्टी के अंदर ही रहना चाहिए. तो अगर ऐसा होता है कि जब ये प्रॉपरली मैच्योर भी नहीं हुआ है लेकिन वो बाहर आ चुका है, तो वो क्या होगा, like due to sun rays, due to the exposure towards the sun rays, it will get like the level of solanine get increased. Okay, तो ये toxic हो जाता है. And the best way to minimize the hazard from those toxins is to take appropriate precaution against damage, like insect attack during the growing, harvesting, and yes, जो जब processing करो तो अच्छे से करना होगा. Okay, so there are some questions. So this topic is not very like large. So yes, ये आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा. YouTube में भी वीडियो अपलोड होगा, तब भी आप देख सकते हो. तो yes, तो फर्स्ट इज योर क्वेश्चन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. तो इसमें बोला गया है ये विटामिन नॉट ओनली सेलेनियम है लेकिन फ्लेवोनॉइड्स लाइकोपेन वो भी है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सॉल्व. तो अगर लाइकोपेन बोला गया है तो वो तो आप लोग जानते ही हो, वो ऑप्शन 2 होगा, D2. तो D2 यहाँ पे एक ही है, तो ये आंसर इज ए. लेकिन मैं बाकी का भी जो ऑप्शन है वो भी बोल देती हूँ. ओके, सो A4 सेलेनियम आपको मिलेगा सी फूड में. सो ये सेलेनियम का जब भी आप सोचो तो सी फूड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ सेलेनियम यूजुअली. नेक्स्ट इज योर विटामिन ई. सो विटामिन ई अगर बोला गया है तो यस आपका मिल जाएगा विटामिन ई सनफ्लावर सीड में, ठीक है, क्योंकि ऑयल प्लांट सोर्सेज आर नेचुरली कंटेन मोर विटामिन ई. नेक्स्ट इज योर फ्लेवोनॉइड्स, जो कि होगा आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फ्लेवोनॉइड्स मिल जाता है, राइट, अभी अभी हमने देखा. नेक्स्ट इज योर लाइकोपेन, तो टोमेटो में मिल जाएगा. तो गार्लिक का ऐसा कोई मतलब सॉरी सी फ्लेवोनॉइड्स इज गोइंग टू बी 1. हाँ, सो 1 होगा फ्लेवोनॉइड्स में गार्लिक. So next is lycopene, that is your D2 tomato. So now I think this much is clear to you. So according to that, you have to remember the list. Sorry, the options, like which one is having the correct option, like the association is which one with which option, right? So next is your this one. So इसमें भी थोड़ा बहुत बोला गया है, तो देख लेते हैं. अगर बटर बोला गया है तो उसके साथ केक, ऑयल, रोज सिरप, ऑरेंज स्क्वाश. सो इसमें भी कलरेशन का ही मामला है, लेकिन ये थोड़ा अलग सा टाइप, लाइक ये फूड प्रिजर्वेशन में आएगा, एंड फैट में भी थोड़ा बहुत आता है. सॉरी, तो अगर आप देखो तो आपको बोला गया है बटर, तो वो किसके साथ एसोसिएटेड आप करोगे? इज इट बेकिंग सोडा, एनाटॉल, कोचिंग? ओके, ऑरेंज स्क्वाश में सोडियम बेंजोएट रहता है, ठीक है. फूड प्रिजर्वेशन में आप देखोगे तो ये अगर 2 है तो इसमें एक ही ऑप्शन है विच इज योर डी. देख लेते हैं आंसर, ये आंसर इज डी ओनली. नेक्स्ट, तो इसमें अगर बाकी ऑप्शन हम देखें तो फॉर ऑप्शन ए इट्स 4, दैट इज यस A B C D E, A B C D. हाँ, सो ऑप्शन ए के लिए आप एनाटो जाओगे, देन ऑप्शन 3 के लिए आप जाओगे, सॉरी बी के लिए आप जाओगे बेकिंग पाउडर. थोड़ा आई थिंक दिस ऑप्शन लाइक ऑरेंज यूजिंग, दिस इज ई, राइट, ई. सो इसमें ये तो ऑप्शन सही है. डी का है आपका रोज सिरप 6 के साथ एसोसिएट होगा, दैट इज कोचिनियल, वो भी सही है. रोज सिरप कोचिनियल एक कलरेशन है, वो मिक्स करा जाता है. नेक्स्ट योर डी, दैट इज 1, दैट इज आपका ए बी सी डी ई. डी अगर 6 हुआ तो सी 1 होगा, दैट इज योर BHA. सो ऑयल का भी सही है. BHA एंड BHT, these are synthetic ऑप्शंस ऑफ योर ट्राइग्लिसराइड, तो ये ऑयल के साथ एसोसिएटेड है, वो भी सही है. अगर बी पकड़ो तो B3 होगा, दैट इज योर
B3 बेकिंग पाउडर। सो हाँ, केक में बेकिंग पाउडर यूज होता है, वो भी सही है। देन आपका हो गया ए के साथ आप चार में जाओ तो बटर में एनोड तो यूज होता है। सो यस, दैट ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो यस, आपको आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है आपका आंसर। सो बार बार एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट ये जो टर्म है, इसमें ये जो इंडिविजुअल टॉपिक में बहुत बार आया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइकोपिन हो गया, जो भी पिगमेंट होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट ही है बाय नेचर। सो ये एंटीऑक्सीडेंट है क्या, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट are a group of naturally occurring substances that protect the cell from oxidative damage. This is important to remember, right? So ये normal जो cell है human body में उसको protect करता है। Okay, so antioxidants are got to fight from the free radicals damage, donating electrons to deactivative radicals. Okay, so see, we are metabolizing everything, the food items and all. So इसमें होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो भी मतलब सेल डैमेज भी होता है अगर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेटिव लाइक कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हुआ तो बॉडी में, तो इसके लिए ही फल सब्जी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उसमें होता है आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी लाइक द कलर पिगमेंट। ओके, so that is why fruits and vegetables, the raw ones, are very much essential to consume. क्योंकि ऑक्सीडेटिव डैमेज अगर ज्यादा हुआ तो एजिंग ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड में आ जाएगा। नॉट ओनली दैट, बॉडी ऑल्सो गेट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस इजीली ऑल्सो। सो there should be a proper balance between oxidation and oxidant and antioxidant. सो वो मतलब फ्री रेडिकल्स कम से कम होना चाहिए, ज्यादा अगर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्री मैच्योर एजिंग, जल्दी एजिंग आ जाएगा, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन मतलब डिजीज ओनली, नथिंग एल्स। सो ये आपको याद रखना जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट आर नेचुरल सब्सटेंसेस, ये ऑलरेडी वी हैव लाइक डिस्कस। अगर आप देखो तो देखो बीटरूट, नट्स, टोमेटो, कैरेट, सी these are even for the lifestyle management, these are very much important this topic by nature. So dietary antioxidant are antioxidant obtained from the diet. Dietary antioxidant help to prevent chronic diseases. Okay, some common dietary antioxidants we have already discussed, these are carotenoids, phenolic compounds, sulfur containing compounds. Okay, विटामिन सी साइट्रस फूड में ज्यादा रहेगा। So all of these are antioxidant. ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी यूजीसी ने जेआरएफ एग्जामिनेशन में, कि बोला ये सेम ही था, लेकिन इसमें और एक दो एसोसिएट करके बोला, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि इनमें से एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। एक लाइन में लिख लो अगर पॉसिबल हो तो, विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम। ओके, majorly vitamin E, beta carotene C, and vitamin A is also antioxidant, sometimes plays some kind of role, but majorly vitamin E। अगर आपको मतलब बोला भी जाए कि vitamin C and E में like who plays major antioxidant role, then E would be the primary option to check mark. Okay, that would be the right answer. So yes, vitamin E is source क्या है, wet germ में रहता है, मतलब आपका जो गेहूं हो गया उसके बाहर का जो कवरिंग है उसमें ज्यादा रहता है। नेक्स्ट इज योर आलमंड, नट, फिश ऑयल एंड लिवर ऑयल। देन बीटा कैरोटीन में ऑप्शंस है कैरेट, टोमेटो। ओके, सो जो रेड कलरेशन में बोला गया है ना, वो कॉमनली सबसे ज्यादा मतलब सोर्स है जो जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में रहेगा आपका स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंटीऑक्सीडेंट। ओके, सो इसीलिए मोस्टली सी फूड पे मिलता है, ये आप याद रख लेना। Okay, so this individual portion is the last portion of this individual class. So अगर आपको कुछ लगे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको है तो जरूर आप definitely through the given number you can ask, and जो भी आप आज मतलब आपको कवर मतलब आप ये क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया इसके ऊपर हम मॉक टेस्ट भी लेंगे कमिंग क्लासेस में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो भी आ चुका है वो हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल लाइक टू हैव अ प्रॉपर इंडिविजुअल सेशन, जिसमें जो भी आज के सेशन में हमने सीखा है उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम और भी अगर कुछ है तो वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड वी आर मीटिंग सून इन द कमिंग क्लास।